Now I just want to introduce our brother John Matthew. John Matthew has been living in California, US, and is a special ministry for the community, especially reaching the alcoholic and drug addiction and all these people. He's having a ministry. He's the founder of Life Challenging Ministries based at US, and he has been traveling India and many other places, and he has been teaching, and he has been training the people and encouraging the pastors, churches to work among those kind of people to bring them into Christ. And we are very glad and we are very happy to have him at this moment. And thank you, brother John Matthew. We welcome you in the name of Jesus. And now over to John Matthew. Please stay. Thank you. Thank you, brother Daniel. Welcome to all of you. Thank you, Archbishop Jonathan, for praying and blessing this event. I want to thank all of you for joining us this evening. And this is a very key topic. And so we're just going to coordinate between me and the translator, Pastor Sanjeev Kumar. So we're just going to coordinate between him and me. Okay, Pastor Sanjeev Kumar, please give the introduction. Yes, sir. परमेश्वर का धन्यवाद है इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। खास करके पास्टर डैनियल कामराज जी के लिए धन्यवाद हो, जिस प्रकार से उन्होंने ये सब बातों को करने के लिए, इस मीटिंग को करने के लिए सहायता किया। और खास करके हमारे बीच में जिन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु के दास जोनाथन ने, और उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो, बिशप जोनाथन जी के लिए कि हमारे बीच में आए, प्रार्थना किया। हर एक जितने भी सहभागी इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, आप सब लोगों के लिए धन्यवाद हो। और आज जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा बहुत ही गंभीर एक विषय है। जो प्रेयर कर रहे हैं उनकी पिक्चर नहीं आ रही। I would request all of you to please mute your microphone so that we can have a smooth program. मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने जो माइक्स हैं उनको म्यूट करें ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को सही रीति से चला सकें। Before I go into the presentation, I just want to give you a little introduction about our ministry. It is called Life Challenge International. और इससे पहले कि मैं इस आगे की इस प्रोग्राम में जाऊं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सेवकाई के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं लाइफ चैलेंज मिनिस्ट्री, सेवकाई। So our ministry, the vision of our ministry is to help society overcome addiction and all other life challenges. और हमारी इस सेवकाई का जो दर्शन है वो ये है कि हम इस प्रकार के लोगों की सहायता कर सके, उनकी अगुवाई कर सके जो बुरी लतों के अंदर फंसे हुए हैं। So we started with men's residential programs. This is a up to 1 year residential program, and this is our first ministry. So we have different centers in different parts of India. और हमारे पास हमने जो है इस एक ऐसे पुनर्वास सेवकाइयों को शुरू किया है भारत के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर। हमारी 1 साल के अंदर लोगों को वहां पर रखते हैं और उनको पुनर्वास किया जाता है। So in the past 17 years, hundreds of men have gone through our program, and many of them are doing well by God's grace. और पिछले 17 सालों में हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा, हमारी सेवा के द्वारा बहुत सारे लोगों ने जीवन को बदलते हुए हमने उनके देखा है और आज वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। We also have a program in the prisons where we go and conduct addiction awareness seminars and other events inside the prisons. और हमारे पास एक और भी सेवा है कि जहां पर हम जेल के अंदर जाकर वहां पर भी प्रभु की सेवा करते हैं और जितने भी लोग बुरी आदतों में हैं उनके बीच में कार्य करते हैं। We also conduct addiction awareness programs in different parts of the world, in South Asia, India, Sri Lanka, United States, Middle East, letting people know about the dangers of drugs and alcohol. और इसके भी अलावा हम दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग जगहों के ऊपर, अमेरिका में और इंडोनेशिया में अलग Sanjeev, you have to check your mic. Sanjeev. John. Yes, is Brother Sanjeev back on?
Yeah, his voice is not coming. Can I request C.T. Robin, go ahead. C.T. Robin, can you just unmute your mic, please? Hello. Sanji, are you there? Hello. Who's Yes, there? sir. Yes, Hello. sir. I'm there. Okay, go ahead. Okay. Yes. Yes. तो हम अलग-अलग जगहों के ऊपर इस सेवकाइयों को चलाते हैं. We also do counseling training programs, and over the past years, we have trained addiction counselors in different parts of the world. और हम एक और सेवा भी करते हैं कि हम काउंसलरों को जो सलाहकार हैं उनको एक ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जो बुरी आदतों में लोग हैं उनको वो एक काउंसलिंग दे सके, सलाह दे सके दुनिया के अलग-अलग कोनों में. We also run a residential school. This is for children because their fathers were having addiction problems. Some of them died of HIV. So we have a residential school in Manipur for 120 children. No, his mic is getting problems. Yes. Why don't you go to? Can I request a C.T. Robin? C.T. Robin. हेलो. Yeah, go ahead. Pastor Yes. C.T. Robin. और यस और हम जो है अलग यस सर. Yeah, Sanji, Go ahead, your go mic ahead. is getting problem. Are you okay? और हम जो है ऐसे यस सर हम ओके. और हम ऐसे स्कूल को भी चलाते हैं जहां पर हम बच्चों को हॉस्टलों में रखते हैं और वहां पर उनको शिक्षाएं देते हैं. So today we are here to talk about addiction. Addiction is और the आज greatest enemy of the human race. और आज जो है इस सभा के अंदर हम एक नशे की लत के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं. नशा जो है वो मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है. I want all of us to understand this very clear fact. Addiction is the greatest enemy of the human race. मैं इस चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले कि जो नशा है वो मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है. Every day, thousands of people are dying. Addiction is the #1 killer of human beings in our world. और हर दिन जो है हजारों की तादाद में लोग मरते हैं और जो नशा है जो बुरी लतें हैं वो एक संसार के अंदर आज एक बहुत ही बड़ा खूनी अपराधी के रूप में जाना जाता है. Millions of people have died because of addiction. Millions of families are affected because of addiction. लाखों लोग जो है वो इस बीमार इस जो बुरी लतों के द्वारा मर चुके हैं. बहुत परिवार जो है नाश की ओर जा रहे हैं. समाज के अंदर भी बुराइयां हो रही हैं. So many families are broken. So many fathers are in prison. So many wives have been widowed. Addiction has destroyed families. और देखिए बहुत से परिवार खत्म हो चुके हैं. बहुत से पिता हैं जो मर चुके हैं. बहुत से पिता हैं जो आज जेलों के अंदर हैं. और इस नशे ने बिल्कुल दुनिया के अंदर परिवारों के अंदर तबाही मचाई हुई है. Our society has been affected because of addiction, because of drunk driving, because of crime, because of violence. All that is addiction is the #1 enemy of the human race. और इस बुरी लतों ने इन सारे जितने भी प्रकार के ये जो नशे की आदतें होती हैं इन्होंने हमारे समाज के ऊपर भी बहुत बड़ी तबाही मचाई हुई है. आज लोग शराब पीकर नशे कर जब ड्राइव करते हैं वो एक्सीडेंट करते हैं और लड़ाइयां झगड़े और ये सब प्रकार की बुरी बातें जो है आज इस लतों के द्वारा हमारे दुनिया के अंदर हो रही है. The Bible tells us in John 10:10, the thief comes to kill, to steal and to destroy. और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 का 10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु इसलिए आता कि वो घात करे और नष्ट करे. Addiction is a thief that has come and destroyed our communities, destroyed our families and killed many people. जो नशा है जो बुरी लतें हैं वो एक ऐसा चोर है जिसने आज बहुत सारे लोगों को परिवारों को और जीवनों को चुरा लिया है, नाश कर दिया है, जो समाज के अंदर तबाही मचा रहा है. But our biggest problem is nobody really knows what is addiction. और लेकिन हमारी आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है किसी को इस बात का नहीं पता है कि ये जो लतें हैं ये क्या है, बुरे आदतें क्या हैं.
See, if you go to a doctor and if a doctor has to give you a medicine, first he will do a diagnosis because he wants to find out what exactly is the problem. Then he can give the medicine. But if you don't know what the problem is, then how can you treat? और देखिए, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को लेकर, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, उस बीमारी की छानबीन करता है, तभी वो आपको कोई दवाई दे सकता है। अगर उसको पता नहीं है कि ये बीमारी क्या है, तो किस प्रकार से वो आपको उसकी दवाई दे सकता है। The reason why addiction is so spread all around the world is many people have no idea what is addiction. They don't have any idea what exactly this problem called addiction is. और आज जो है समाज के अंदर ये एक ऐसी एक बात हो गई है जहां पर हमारे नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये जो लतें हैं, ये जो बातें हैं, ये नशे, ये जो बुरी आदतें हैं, एक्चुअली ये है क्या। So there are different suggestions that people have given about addiction. और देखिए, अलग अलग प्रकार की धारणाएं आई हैं जो लोगों ने जो है इस बुरी आदतों को, लतों के बारे में बताया है। There are a lot of people who think that addiction is like a disease, that if you get addiction, then it will get worse and worse over time, and finally it will kill you. और कई बार इस प्रकार से लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि जो ये नशे हैं, बुरी लतें हैं, ये एक रोग है, बीमारी है, जो धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ती है और एक दिन आपको खत्म कर देती है। Then there are some other people who say, no, it is not a disease, it is a choice. Every time you take drugs or alcohol, you are making a decision, you are choosing, so it is not a disease. और कई बार इस प्रकार से भी लोग कहते नहीं, ये कोई रोग नहीं है, ये तो एक चुनाव है। जब आप हर बार कोई नशा लेते हैं, दारू पीते, शराब पीते हैं, ये आपका एक चुनाव है, ये कोई रोग नहीं है। So if you attend many different seminars about addiction, you will get different viewpoints. You will get different ideas about addiction because nobody has any clear definition about addiction. और मुझे आपसे कहने दें, यदि आप अलग अलग प्रकार के सेमिनार या इस प्रकार की बातों को आप सीखते हैं, तो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं आपको मिलती हैं, क्योंकि अब तक किसी ने भी जो है इस बुरी आदतों की सही परिभाषा हमें नहीं दी है। So today we are going to tell you what we believe about addiction, and you can listen and you can test it with the word of God, and if it is agreeing with your spirit, then you can join along with what we are doing. और आज के इस शाम के समय में हम आपको बताना चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार भी और किस प्रकार से प्रभु ने हमें इस बात को बताया है कि ये जो बुरी आदतें, लतें क्या है। अगर आपको ये बातें सही लगती हैं, तब आप हमारे साथ इस सारी सेवकाइयों के अंदर आगे चल सकते हैं। We believe that addiction is a darkness. हम इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि ये जो बुरी लतें हैं या जो ये नशे हैं, ये एक बहुत बड़ा अंधकार है। In the Bible, the word darkness is the Greek word skotia, which actually means that which cannot be defined, that which cannot be understood, that which we cannot explain. और इस प्रकार से जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, नए नियम के अनुसार यहां पर जो शब्द आया है अंधकार के लिए, उसको कहा गया है स्कोटिया, जिसका अर्थ है कि अंधकार में समय, या फिर जिसका अर्थ है अस्पष्ट होना, जहां पर आप उसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकते, वो समझ से बिल्कुल दूर है। Addiction is such a darkness, we don't know exactly what it is, we cannot define it, we cannot explain it, but it is very powerful and it is an enemy. So we believe that addiction is a darkness according to the Bible. नशे की लत हमारे अनुसार ये एक बहुत बड़ा अंधकार है, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, जिसकी हम कोई परिभाषा नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक बात हम कहते हैं कि ये जो नशा है, ये आज हमारा एक बहुत ही बड़ा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। Those who are living in the darkness, those who are living under addiction, there are three things that happen in their life. और देखिए, जो इस अंधकार के अंदर जीते हैं, जो इस नशे के अंदर जीते हैं, उनके जीवन के अंदर तीन अलग अलग बातें होती हैं।
Today we are providing this training. I believe that all of you are in the counseling ministry, and as we teach today, I want you to understand and I want you to use this in your counseling ministry. और आज जिस प्रकार से हम सब लोग इस सेमिनार को अटेंड करते हैं, सहभागी होते हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये एक सलाहकार या काउंसलिंग की एक सेमिनार है कि हम आपको बता रहे हैं किस रीति से आप उन बातों को समझ सकते हैं और किस रीति से आप आगे सलाह दे सकते हैं इस सारी बातों के द्वारा. Every person you meet who has an addiction problem, everybody who meet who's struggling with this, these three things are true in their life. Their life, they have a lot of sorrow. In their life, they have a lot of sickness. And in their life, they have a lot of anger. और देखिए, हर एक व्यक्ति से जिनसे आप लोग मिलते हैं, जिनके जीवन के अंदर नशे की आदतें होती हैं, उनके जीवन के अंदर तीन बातें होती हैं. उनके वो अंदर से दुखित होते हैं, वो रोगी होते हैं और उनके जीवन के अंदर क्रोध होता है. ये तीन बातों से वो लोग प्रभावित रहते हैं. So it is very important for us as counselors to understand what is the root of addiction. Where is this addiction coming from? How did this start in a person's life? और जिस प्रकार से मैं और आप सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, हमें इस बात को समझना है कि ये जो लतें हैं, नशे की जो बातें, इसकी जड़ कहां है और ये कैसे एक व्यक्ति के जीवन के अंदर आई है. How did a person fall into the trap of addiction? What exactly happened in his life? We need to find out the root of addiction. और देखिए, हमें इस बात को समझना है, हमें उस नशे की बुरी आदत की जड़ को समझना है कि किस प्रकार से ये एक व्यक्ति इसके जाल में फंस गया, किस रीति से ये व्यक्ति इससे प्रभावित हो गया. The deepest root of addiction starts with something called selfish desire. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है और जो सबसे बड़ी जो जड़ इस नशे की है, वो ये है स्वार्थी इच्छा, स्वयं की इच्छा. That is why when you meet somebody who is struggling with an alcohol problem, he may have 100 rupees in his hand, but before he spends any money to feed his children, he will first take care of his alcohol habit. और देखिए, हर एक उस व्यक्ति के अंदर जो बुरी आदतों में फंसे हैं, नशों के अंदर फंसे हैं, उनके अंदर ये एक बात होती है, वो एक स्वार्थीपन उनके अंदर होता है. इससे पहले कि अगर उसकी जेब के अंदर 100 रुपए है, अगर वो व्यक्ति अपने बच्चों को खिलाने से पहले वो पहले अपनी नशे की आदत को पहले वो खिलाएगा, पहले उसको पूरा करेगा. So as time goes on, they will become more and more selfish about fulfilling their desire first. Everything else will stop. The wife desire, the wife interest will stop. Family responsibility will go away because they are totally focused on fulfilling their selfish desire. और धीरे धीरे जिस प्रकार से ये व्यक्ति नशों की आदतों में बढ़ता है, उसका स्वार्थीपन जो है और ज्यादा बढ़ने लग जाता है. ये व्यक्ति दूसरों की इच्छा से बढ़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, बच्चों की देखरेख, उन बातों को छोड़ देता है, पत्नी की इच्छा क्या है, जिम्मेदारियों क्या है, उन सब बातों को ये त्याग कर सिर्फ अपनी बुरी लतों को, नशों की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है. The Bible gives us very beautifully explains this whole thing in James chapter 1, 14 to 16. It says, each person is tempted when enticed by their own evil desire. Then after the desire is conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived. और देखिए, बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप में इस बारे में बताती है, जिस प्रकार से हम याकूब उसका 1 अध्याय 14 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ. The desire will start as a very small thing, but as it grows, finally it will lead to death.
और देखिए मेरे प्रियो, ये जो अभिलाषा है ये बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू होती है, जिस प्रकार से ये बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ये एक व्यक्ति को नाश की ओर ले चली जाती है। Today around the world, so many young people have died because of overdose, because of so many things, because the evil desire began to grow and finally destroyed the people. और देखिए आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जवान लोग, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नशा लेने के कारण वो मर गए हैं, क्योंकि उनकी जो ये अभिलाषा थी बढ़ते बढ़ते और ज्यादा इसने उनको स्वार्थी कर दिया है और इसकी वजह से वो लोग नाश हो गए हैं। There is another verse, Galatians chapter 5, verse 16 to 18, where Paul tells us that for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh, and they are opposed to each other. What Paul is saying is like there is a battle inside you. The desires are having a war inside you. और देखिए एक और जगह पर गलातियों का 5:16 में पौलुस इस प्रकार से कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। 17 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति इस प्रकार से बुरी लतों के अंदर होता है, उसके मन के अंदर, दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा मलयुद्ध हुआ होता है। For example, today one of the biggest addictions inside the church among believers is the addiction to pornography. और आज जो है मुझे एक उदाहरण के रूप में कहने दे, कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों के अंदर एक बुरी लत है, एक बुरी आदत है, और वो अश्लीलता को देखना। So on one side they have the desire to follow God, on one side they have the desire to follow the Holy Spirit, but on the other side they have this desire for pornography, and both these desires are fighting, and that is exactly the struggle that is there inside them. और मुझे आपसे कहने दें कि बहुत सारे विश्वासी लोग वो प्रभु के पीछे भी चलना चाहते हैं, आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ में अश्लीलताएं, पोर्नोग्राफी जो है वो उनको अपनी ओर खींचती है और वो इस दुविधा के अंदर, इस मलयुद्ध के अंदर फंसे हुए होते हैं। Now there are three different categories that we can put this desire into. और देखिए अब 3 अलग अलग प्रकार की जो प्रकार है, जिनको हम इन अभिलाषाओं को अलग अलग बातों के अंदर विभाजन कर सकते हैं। In 1 John chapter 2 verse 16, John the apostle tells us that there are 3 kinds of desires. One is the desire of the flesh, one is the desire of the eyes, and the other one is the pride of life. और देखिए पहला यूहन्ना उसका 2:16 के अंदर यूहन्ना हमें बताता है कि किस प्रकार से ये 3 इस अभिलाषा को वो 3 अलग अलग भागों में बांटता है, और वो अब इस प्रकार से है कि एक तो शरीर की अभिलाषा, और फिर आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड। 3 प्रकार की अभिलाषाएं हैं। All addictions in the world can be put into one of these 3 categories. और इस दुनिया के हर एक जितनी भी बुरी लतें हैं, उनको इन 3 प्रकार की परिभाषाओं के अंदर हम डाल सकते हैं। When a child is born and as he grows up, maybe he's 14-15 years old, he has never tasted beer in his life, but somebody comes and introduces that to him, then that desire comes in, then slowly it begins to grow. और देखिए एक बच्चे का जन्म होता है, जब वो 13-14 साल का हो जाता है, कभी उसने अपने जीवन के अंदर एक बियर नहीं पिया है, लेकिन कोई उसके जीवन के अंदर आता है और वो उस बियर को उससे परिचित कराता है, और ये भी उसको जब लेता है, वो जो अभिलाषा है वो धीरे धीरे इसके जीवन में बढ़नी शुरू हो जाती है। In the same way, all these desires, they come through different ways. They start as very small and then slowly they begin to grow. और इसी प्रकार से ये सारी जो बुरी आदतों की जो लतें हैं, इनकी जो अभिलाषा है वो धीरे धीरे छोटे रूप में आती है और धीरे धीरे बढ़कर ये एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। When you study addiction counseling, we see that all addictions are divided into 2 categories.
और जब आप इस सलाह को लेते हैं, काउंसलिंग को पढ़ते हैं, जो आदतों के ऊपर, नशे की आदतों, बुरी लतों के ऊपर काउंसलिंग को पढ़ते हैं, इसको जो है दो अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। The first kind of addiction is called substance or chemical. This is something that you have to put inside your body. The substance that you have to put inside your body. So it is called substance addiction. और ये जो पहला जो आदत है, बुरी आदत है, वो है एक रासायनिक तत्व लेना या फिर एक केमिकल को अपने शरीर के अंदर डालना और कोई दवाई खाना, किसी प्रकार की ऐसी नशे की चीज को अपने शरीर के अंदर डालने को, इसको भी एक बुरी आदत के रूप में देखा जाता है। एक लत है ये, जिसको हम एक रासायनिक लत कहते हैं। So whether it is tobacco, whether it is alcohol, different kinds of drugs, all these things comes under this category of substance addiction. और जब चाहे वो कोई शराब हो, चाहे वो कोई Sanjeev, mic is not working. Sanjeev. Sanjeev. और जब देखिए, जब आप इन सब, इस जो भी शराब है, जो भी ये आदतें हैं, जब एक व्यक्ति इनको लेता है, इसको जो है हम एक रासायनिक तत्व, एक रासायनिक आदत के रूप में कहते हैं। See, today we are only having an maybe 60-minute, 90-minute seminar. So I'm just giving you a complete overview of all these things. We can go very much detailed into all these subjects, but this is just to give you totally an overview about this subject. Sanjeev. और आज जो हमारे पास इतना समय नहीं है, थोड़ा समय है, आज हम इसको पूरी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कुछ बातें जो है इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं। The second group of addictions come under behavior addictions. Behavior. और दूसरा जो बुरी लत है वो है हमारे जो बिहेवियर या हमारा किस प्रकार से हम अपना जो है आदत को दिखाते हैं, उसके ऊपर ये एक नशा आता है। There are a lot of people who struggle with food addictions. Sometimes they have overeating, they have different kind of food addiction problems. और देखिए, कई लोग जो है एक बहुत अधिक खाने की आदत उनको होती है, ये भी एक बुरी लत है, ये भी एक नशा है। Then there are people who have problems with fantasy addiction. That means watching movies, video games, internet, social media, all that comes under fantasy addictions, behavior addictions. और एक और बात इसके अंदर आती है, बहुत सारे लोग जो है एक और चीज को करते हैं, वो ऐसी वीडियो गेम देखते हैं और बहुत सारा जो है इंटरनेट पे रहते हैं, सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करने का भी ये भी एक बुरी लत के रूप में माना जाता है। Then we have addictions related to money. This is where we have gambling, this is where we have shopping, and all these addictions come under the money behavior addictions. और एक और बात आती है जो पैसे के मामले के अंदर एक बुरी लत है, वो ये है बहुत अत्यधिक पैसा खर्च करना और जुआ खेलना, जुए को इस्तेमाल करना, ये सब भी जो है इसी एक बुरी लत के अंदर आता है। In India, maybe we don't have such a big problem about shopping addiction, but there are people around the world who have shopping addiction. That means they will spend all their money buying different things that they will never use. They will just buy these things and put it in their home. So this is a different kind of addiction that these people are struggling with. और देखिए, हो सकता है भारत के अंदर आपके बीच में ये ना हो, लेकिन दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर लोग इस बुरी आदत के द्वारा बहुत प्रभावित हैं। उनको सामान की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सामान को लेकर घरों में रख देते हैं और अपना पैसा उन चीजों के अंदर खराब कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक आदत है, बुरी लत है। Some more under the category of behavior addiction is something called adrenal addiction, which means there are people who just like to take risks. There are people who do crime. There are people who do over exercise. That also is one kind of addiction. और एक और
बुरी लत इसके अंदर आती है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है बिना किसी वजह से कोई किसी प्रकार का रिस्क लेते हैं, खतरे मोल लेते हैं और ज्यादा कुछ एक्सरसाइज की और व्यायाम की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, शारीरिक बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। ये भी एक प्रकार की लत है। Then there is sexual addictions, which is one of the most destructive addictions. This is pornography, prostitution, and that kind of sexual addiction problems. और एक और बुरी लत को माना जाता है वो है सेक्स की बुरी आदतें। ये वो बातें इसके अंदर आती हैं, गलत जो रिश्ते संबंध लोगों के साथ में, और अश्लीलताएं और व्यभिचारीपन और वेश्यागमन, ये सब कुछ जो है इस लत के अंदर आता है। This is a very big subject. There are a lot of different things about this, but please understand, today we are only giving an overview about this subject. और देखिए इसके अंदर बहुत कुछ आता है। ये कैसा विषय है जो बहुत विस्तार भरा है, लेकिन आज हम सिर्फ इसमें चंद बातों को ही आज एक परिचय के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। Now for you as a counselor, it is very important for us to know how to bring somebody out of addiction. और अब आप एक सलाहकार के रूप में अगर हम देखें, एक काउंसलर के रूप में, अब हमारे पास ये एक विषय आता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को जो बुरी आदतों के अंदर फंसा हुआ है उसको हम इससे बाहर ले आ सकते हैं। Even though you may not know too much about alcohol, you may not know too much about addictions, you may not know too much about the drugs, but still if you understand the concept, you can still be able to help people to come out of addiction. और हो सकता है कि आपको इन सारी बातों के बारे में बहुत विस्तार नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, आपको पता नहीं कि ये अल्कोहल क्या है, नशे क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये कोई बात नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, उनको इन सब बातों से छुड़ाकर। So today I just want you to understand the biblical concept of how to do addiction counseling, how to help people. Then you can apply that when you are helping and counseling somebody. और देखिए आज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से बाइबल के ऊपर आधारित उस बात को, या बाइबल इस विषय में क्या कहती है, अगर उस चीजों को हम लेते हैं तो हम उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जो बुरी लतों के अंदर फंसे हुए हैं। Let us look at this verse, Ephesians chapter 2, verse 2 and 3. It is a very powerful verse, and let us आइए हम from this. और आइए हम इफिसियोस का 2 अध्याय का 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे। एक बहुत ही सामर्थ्य भरा वचन इसको जाना जाता है। So here Paul says, in which you once walked, following the ways of this world, following the prince of the power of the air, and following the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and mind. और इस प्रकार से पौलुस यहां पर कहता है, जिनमें तुम भी पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। Desires are able to come from 3 different places. It can come from yourself inside you, it can come from the world, or it can come from the devil or the demons. और देखिए ये जो अभिलाषा है इसके 3 अलग अलग क्षेत्रों से ये आपके जीवन में आ सकता है। पहले जो है ये हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, फिर जो है ये संसार के द्वारा हमारे जीवन में आता है, और तीसरा ये शत्रु जो शैतान जिसको हम कहते हैं उसके द्वारा ये अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती हैं। So suppose you are standing in front of a person who comes to you for help and say he is 30 years old and say he's been having an alcohol problem.
और आज इस बात को सोचकर देखिए, अनुमान लगाइए कि आप कहीं खड़े हैं और आपके सामने एक 30 वर्ष का व्यक्ति आता है और वो कहता है कि उसको नशे की एक बुरी आदत है, लत है, और वो आपके पास इस बात को लेकर आता है। So if you talk to him, he may say, I was in 8th standard, 9th standard, I had some group of friends and they introduced me to alcohol. So here you see that the first introduction to the desire was from the world. That is a group of people around him. They introduced this desire to this person. और देखिए, जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं, वो आपको कहेगा कि जब मैं 9वीं में 8वीं कक्षा में था, तब मुझे कुछ मित्र मिले, दोस्त मिले, जिन्होंने मुझे दारू पिलाया और इस बात के बारे में मुझे परिचित कराया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये दुनिया है जो हमें अलग अलग बातों को, ये बुरी लतों को हमारे पास लेकर आती है। Once the desire is gone into the person and once he has begun to enjoy that, then he will continue to follow. Even though his friends are not there, he will continue to follow that desire. और एक बार ये अभिलाषा इस व्यक्ति के अंदर आ जाती है, अपनी जगह बना लेती है, यहां तक कि उसके दोस्त, उसके मित्र उसके साथ भी ना हो, तो भी वो व्यक्ति इस अभिलाषा को पूरा करना चाहता है। Because the enemy's plan is to somehow put the desire inside you. Once the desire has come inside and once you have followed it for little time, then you continuously, lifelong, you will go behind it. और देखिए, शैतान इस प्रकार से चाहता है कि एक बार एक व्यक्ति के अंदर ये अभिलाषा जब उत्पन्न हो जाती है, अपनी जड़ पकड़ लेती है, वो जीवन भर इसके साथ चलता है और इसी के अंदर वो नाश होता है। और शैतान यही चाहता है कि एक व्यक्ति इसके अंदर फंसा रह जाए। I want you to pay attention to this word. It says, following the world, following the prince of the air, following the passions of our flesh. The word following. और देखिए, मैं इस बात को आप चाहता हूं कि आप इसकी ओर ध्यान दें कि जिस प्रकार से इसमें लिखा है कि पहले हम क्या थे, इस संसार के अनुसार, इस संसार के हाकिम के अनुसार, कि उसके बात के अनुसार हम चलते थे। इस बात को आप अनुसरण करना, इस विषय को आप समझें। So when you talk to a person who's struggling with addiction, then you must see in your mind that this is a person who has been following, who has been going behind his desires. और देखिए, जब आप एक व्यक्ति को इस प्रकार से देखते हैं, जब वो आपके पास आता है, आपको इस बात को समझना है कि ये व्यक्ति इस अभिलाषा के पीछे जा रहा है, ये इस अभिलाषा का अनुसरण कर रहा है। Now the question is, how do you bring this person out of his addiction? और अब यहां पर जो सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि किस रीति से आप इस व्यक्ति की बुरी लतों से इसको बाहर ले आ सकते हो। Maybe he has spent 5 years, 10 years, 15 years following his addiction, following his desire, and following the ways of the world. Now, how do you bring him out of that place? हो सकता है ये व्यक्ति 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से इस अभिलाषा के पीछे है, इस बुरी लत के पीछे है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से इस व्यक्ति को आप बाहर ले आ सकते हैं। The answer is very simple. The Bible is very clear. All of us know this passage. It says, John chapter 8 verse 12. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. और इसका जो उत्तर है, इसके लिए जो बाइबल हमें सिखाती है, वो बहुत ही स्पष्ट है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना उसका 8:12 में इस प्रकार से कहा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। It is very, very important for us to understand that when a person who is in addiction, that means he is in darkness. The only way that he can come out of his darkness, the only way that he can have light in his life, the only way for that is now he has to begin to follow Jesus, because all this time he was following his desire. Now he has to turn around and start to follow the light of the world. और देखिए, इस बात को समझ लेना है मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति जब इस बुरी अभिलाषा को पीछा कर रहा है, उसकी लत में लगा हुआ है, अगर वो व्यक्ति, बाइबल हमें इसके बारे में स्पष्ट उत्तर देती है कि अगर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे आता है तो वो एक
The Bible says in Colossians chapter 1 verse 13, God has rescued us वहां पर from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of his dear son. और फिर एक और जगह पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि कुलुसियों का 1:13 के अंदर उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है. Now I want to ask you an important question. और अब मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं. So suppose there is somebody who has been in addiction for so many years and is struggling with all these things, and you know that Jesus is the way for him to come out. When you go to him, how come some people don't want to listen to what you are saying? और देखिए, जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं कि एक लत के अंदर है, बुरी आदत के अंदर है, और आप उसको छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं, तो वो कई बार जो है उससे बाहर नहीं आना चाहता है. Today I want all of you to have compassion on those who have been in the bondage of addiction, because during their time of addiction something has happened to them. और देखिए, आज मैं आपको इस बात के बारे में बताना चाहता हूं कि जब आप Sanjeev, your mic is Sanjeev. आप बताना चाहता हूं. यस सर. हेलो. जब आप एक व्यक्ति के पास जाते हैं जो बुरी आदत के अंदर है, उनके प्रति आप तरस से भरे, जब आप तरस उनके ऊपर खाते हैं, तभी प्रभु आपको उनके लिए इस्तेमाल करता है. Sometimes we can look at a person who is in alcohol and we can say, brother, why can't you see that you are destroying your life? Why can't you have any burden for your family? How can you even be like this? Don't you have any responsibility? We may think like that. और कई बार जब हम ऐसे लोगों को मिलते हैं, हम हो सकता है अब उनको कहें, भाई तू अपने जीवन में ये बुरी आदत क्यों रखी है, तू अपने परिवार के बारे में क्यों सोच नहीं रहा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सब बातें हो सकता है हम उनको इस प्रकार से कहें. Today I want you to have compassion on them, because it says that in 2 Corinthians 4:4, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers and keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ. और आज मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के प्रति तरस भरा हृदय रखें, ऐसे लोगों के प्रति इस बात को ध्यान रखें जिस प्रकार से 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. Today all of you are here. My desire is that for all of you to have a real burden. When you see a person who's coming from addiction, I want you to have a real burden, because they're blinded in their minds. They don't understand what you're saying. They cannot understand what you're trying to convey to them. और देखिए, आज की शाम के समय जब हम इस सेमिनार के अंदर बातचीत करते हैं, मैं चाहता हूं आप ऐसे लोगों के लिए एक बोझ रखें, एक तरस से भरा हुआ मन रखें, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा किया है. जब आप उनको कुछ कहते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो उसको देख नहीं पाते हैं. मैं चाहता हूं कि आप एक तरस भरा हृदय उनके प्रति रखें. Ephesians chapter 4, 17 and 18 says, they are darkened in understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardness of their heart. और बाइबल इस प्रकार से बताती है, इफिसियों उसका 4:17 से 18 में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं. If somebody has been going in addiction for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, their heart has become very hard, their mind has become very blind, they are completely in bondage.
और मुझे आपसे कहने दे, अगर कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल 15 साल से किसी नशे की आदत के अंदर गया है, मुझे आपसे कहने दे, उनके मन जो है कठोर हो गए हैं, उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और उनके हृदय बहुत ही कठोरता से भर गए हैं। Many of the things that you may be trying to say, you may be saying, brother, how come you can't see this? Why are you so irresponsible? Why are you doing this? You may try to do all this, but I want you to understand, this dear brother, his heart has become hard. His mind is blind. He does not understand what you are saying. और देखिए, जब आप उस व्यक्ति को कहते हैं, भाई आप क्यों अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे, आप ऐसा क्यों करते हैं, और वो व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाता है, क्योंकि मुझे आपसे कहने दें कि उसका जो मन है वो कठोर हो गया है, उसकी बुद्धि अंधेर हो गई है, इसलिए वो आपकी बात को समझ नहीं पाते हैं। That is why we want to look at a very important thing, that we have to bring that person from the darkness into the light. It is a step-by-step process. और इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि आप इस बात को जब हम करते हैं और इस एक प्रक्रिया में चलते हैं कि हम उस व्यक्ति को अंधकार से ज्योति के अंदर लेकर आए, और ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे शुरू होती है। Addiction recovery is a process. It is a step-by-step journey. Sanjeev, take care of your mic, please. हेलो, यस सर, वो आवाज उनका सही नहीं आया सर। सर, कैन यू रिपीट? Yeah. Addiction recovery is a process. It is a step-by-step journey. We are hearing clear. Can you repeat, please? Addiction recovery is a process. Hello? It is a journey, brother. Can you hear now? और ये जो I can hear you, sir. I can hear you. ये जो ठीक होना है, नशे की आदत से बाहर आना है, ये एक प्रक्रिया है, ये एकदम नहीं होती है, लेकिन ये धीरे धीरे ये अपना कार्य करती है। That is why it is important for a person who is in addiction recovery to continue to follow Jesus. You have to keep on staying on the journey. You cannot afford to stop in the journey of following Christ. No. I'm sorry, Sam. और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एक व्यक्ति इसके अंदर आता है, उसको जो है इसके अंदर बढ़ना होता है, और ये धीरे धीरे उसके अंदर काम करती है। That's why John chapter 12:35 it says very clearly, walk in the light while you can, so that darkness will not overtake you. If you are not careful, darkness can come and overtake you and catch you back. That is why people in recovery have to follow the journey of discipleship. और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हर एक व्यक्ति जो बुरी लतों के अंदर फंसा होता है, उसको एक चेलेपन की यात्रा को करना है, क्योंकि यूहन्ना 12:35 में बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक उसके अंदर चलते रहो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। Now, when a person comes for a revival meeting and we pray and we break the bonds of addiction, is that enough for recovery? That is a question that we have to think about. और देखिए, हमें इस बात को समझना है कि जब एक व्यक्ति इसके अंदर आता है, इस रिकवरी के अंदर या इस ठीक होने की प्रक्रिया में आता है, वो समय लेता है, और उसके साथ में इस बात को में चलना है कि वो एक प्रक्रिया है, चलती रहनी एक बात है। Suppose a person comes to the front of the church, he is struggling with alcohol, we pray for him and we break the chains of addiction around him. Then what happens? Now the chains are broken, but now he has to start his journey step by step outside darkness into the light.
और जब एक व्यक्ति प्रार्थना सभा में आता है और जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन सारी जो जंजीरें उसको जकड़ी हुई है उनको हम तोड़ते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को चेलेपन की उस प्रक्रिया में कदम कदम करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। So there is a very important question, differentiation in the Bible. Are you a disciple or just a believer? और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर उठता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा यहां पर आती है, जिस प्रकार से बाइबल में भी कहा गया है, क्या आप एक विश्वासी है या आप एक चेले हैं? Because for a person who is coming from addiction background, simply believing just in Jesus one time is not enough. After believing, you must abide in God's word and you must truly follow and be a disciple for Jesus. Then you can have true recovery. और जब एक व्यक्ति इस लतों से बाहर आने की कोशिश करता है, जब आप उसको भी समझाते हैं तो उसको क्या करना है, ये एक समय प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करना है, बल्कि एक व्यक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करता है और धीरे धीरे वो उसके अंदर प्रभु में बना रहता है, चेलेपन की प्रक्रिया में वो बना रहता है और तभी वो एक संपूर्ण स्वास्थ्य को अब अनुभव कर सकता है। That is why in John chapter 8 verse 31 and 32, Jesus told to the Jews who already believed him, they were already believers. Then he said, if you abide in my word, then you are my disciples. Then you will know the truth. Then you will know the truth more and more and more. And the truth will set you free. और इसी प्रकार से यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 31 और 32 में प्रभु यीशु मसीह ने भी उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रीति की थी कहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So in addiction recovery, it is very important for us, those who are counseling, that we encourage our people to become disciples. Not just believers. One time saying a prayer is not enough. You have to be a radical disciple of Jesus Christ if you want to truly have recovery in your life. और इसी प्रकार से उनको जो सलाह देते हैं, काउंसलर जो है, उनको हमें ये बात को सिखाते हैं कि जो लोग आपके पास आते हैं उनको हमें ये बात को स्पष्ट करना है कि यीशु के ऊपर एक बार विश्वास या एक बार प्रार्थना करने से ये नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर एक प्रक्रिया है, उसको विश्वास करना है और एक चेलेपन की प्रक्रिया के अंदर आना है, तभी वो एक संपूर्ण छुटकारे को अनुभव कर सकता है। Who is a disciple? What is the mark of a disciple? What is a disciple supposed to do? और एक चेला कौन है? एक चेले के लक्षण क्या होते हैं? उसके साक्ष्य क्या होते हैं? एक चेले को क्या करना होता है? I want us all to understand this explanation for discipleship. It is very important. और मैं चाहता हूं कि आप इस चेलेपन की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये एक बहुत ही मुख्य बात है। If you want to truly be a disciple, first of all, it is an intentional process. That means you are telling yourself, I want to become a disciple. Nobody becomes a disciple by accident. You have to be very, very intentional. You have to be very, very focused about becoming a disciple. So the first thing is, it is an intentional process. और मुझे आपसे कहने दे, चेलेपन की इस प्रक्रिया में इस बात को आपको समझना है कि जब आप चेला बनते हैं, ये कोई ऐसे ही जानबूझकर आने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो समझ बूझ के साथ में एक निर्णय जब आप लेते हैं और उसके ऊपर कार्य। It is a decision. It is an intentional decision where you say, yes, I want to become a disciple. So I am willing to follow. I am willing to implement some things in my life so that I can continue my process of discipleship. और देखिए, जब आप इस प्रकार से करते हैं और जब आप ऐसा करते हैं, तभी आप उस चेलेपन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। The word discipline
is very important for disciple. और देखिए, जो एक चेलेपन के लिए अनुशासन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Discipline is the same root word for disciple. और जो डिसिप्लिन है या जो अनुशासन है वो चेलेपन, वो उनका जो शब्द की जड़ जो है वो एक ही है। There are many spiritual disciplines that we must have in our life if we truly want to become a disciple of Jesus Christ. और देखिए, एक बहुत सारे आत्मिक अनुशासन होते हैं एक व्यक्ति के लिए जो उसको एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह का चेला। If somebody wants to become an athlete, if somebody wants to become a person to run in the Olympics, then he has to bring some discipline into his life. He cannot do whatever he wants. He has to have some pattern in his life. That is the importance of having a disciplined life. और देखिए, उस व्यक्ति को सिर्फ ऐसे ही अपने जीवन में चलना नहीं है, लेकिन एक आत्मिक अनुशासन उसके ऊपर होना है। प्रतिदिन यीशु के साथ एक संबंध में होना है, वही एक संपूर्ण अनुशासन होता है। So for discipleship, first of all, you make a decision, then you must have a clear understanding of all the principles, and then you must implement those through spiritual disciplines. और देखिए, जो है सबसे इस चेलेपन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको जो है एक ज्ञान होना है कि आप इसको जो है एक अपने व्यक्तिगत निर्णय से शुरू करते हैं, और उसके बाद में आप जो है एक आत्मिक अनुशासन को लेते हैं, और तभी जो है आप उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। Today, if you say who is a Christian, people will say anybody who believes in Jesus is a Christian. But we want to make. और अगर आप पूछते हैं कि एक मसीह कौन है, तो कोई भी कहेगा कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो विश्वास करते हैं, वो एक मसीह है। लेकिन आज इस बात को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम विश्वासी नहीं, हम चेले बनाने के ऊपर बात कर रहे हैं। Because we want to become disciples of Jesus, because then we can successfully set people who are from addiction, we can set them free when they become disciples. और देखिए, जब हम आज जो है हम जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है कि किस प्रकार से नशे की आदतों में फंसे हुए लोगों को उनको जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, और ये तभी होता है जब वो यीशु के चेले बन जाते हैं। Now, there are different steps on how to bring a person from the darkness into the light. और अब अलग अलग कदम है किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति को अंधकार से ज्योति की ओर हम ले आ सकते हैं। So before we go into the steps of transformation, I just want to make sure that all of us have understood what I explained so long. और इससे पहले कि हम उन कदमों को देखें कि किस प्रकार से ये परिवर्तन होता है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात को समझ लें कि जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है, क्या आप उसको संपूर्ण रूप से समझ चुके हैं। As I told all of you brothers and sisters, see, we are doing just a seminar on a subject that you can spend years to study. So we are just doing an overview, that's all. और देखिए, जिस प्रकार से मैंने पहले ही आपको कहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि ये जो विषय है ये एक बहुत ही विस्तार भरा विषय है, पूरे जीवन आप इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ कुछ इसके परिचय को ही हम आज आपको बता रहे हैं। But if you clearly understand the principles, then starting today itself, you can start to help people to come out of addiction problems. You don't have to wait to go for a 3-year, 5-year PhD degree. You can already start if you are able to understand the simple principles from the Word of God. और अगर आप परमेश्वर के वचन से इस बड़े ही साधारण से सिद्धांतों को सीख जाते हैं, तो आप उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जो बुरी लतों के अंदर है। आपको 3 साल 4 साल कोई डिग्रियां करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आपको ऐसे इस्तेमाल कर सकता है।
If the Lord leads you to go into a counseling degree, yes, you can be better in counseling. But today, just because you don't have that, don't worry. You can start to help people immediately if you're able to understand all the principles that I'm teaching you. और अगर आपको प्रभु ये मौका देता है कि आप काउंसलिंग की स्टडी करें, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वैसा भी नहीं है, लेकिन जो बातें आज हम सीख रहे हैं, अगर आप उनको लागू करते हैं, आप जो है एक बहुत बड़ी आशीष लोगों के लिए बन सकते हैं। So first of all, please understand, if you are standing in front of a person struggling with alcohol or drugs or any addiction, you must first of all know that person is completely in darkness. Darkness is covering over him. तो पहली बात जो आपको समझना है, जब आप एक ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो नशे की लतों के अंदर है, इस बात को आप जान लें कि वो व्यक्ति अंधकार में है और अंधकार ने उसको पूरी रीति से जकड़ा हुआ है। Then we learned that how did he become into darkness so much? That is because he followed some desire. There were different desires that were there in different ways. Some desire came inside his life, and then little by little he followed, and finally he found himself in total darkness. और दूसरी जो बात है, हमें समझना है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति इस अंधकार की अभिलाषा के अंदर आया है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, इसकी जड़ क्या है, और धीरे धीरे जब इस व्यक्ति ने उस अभिलाषा को पूरा किया और ये इस संपूर्ण डार्कनेस के अंदर या संपूर्ण अंधकार के अंदर इसका जीवन चला गया है। Then we learned that those who are in darkness, their mind has been blinded and their heart has been hardened. और जो तीसरी बात हमने सीखी है कि जो लोग इस अंधकार में चले जाते हैं, उनकी आंखें जो है वो अंधी हो चुकी है, उनके हृदय कठोर हो चुके हैं और वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो चुके हैं। So sometimes people who come to you, they might say, "Oh no, brother, I don't have any problem." They may try to argue with you sometimes. और कई बार जब आप लोगों को मिलते हैं, जब उनसे बात करते हैं, कई बार वो हो सकता है वो आपको कहे, नो भाई, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम समस्या कोई बात नहीं है। They may try to deny that they have an addiction problem. Many times you find people, they will deny, they will say, no, I don't have such a big problem, because that desire is making them want to continue the addiction. So they will give different excuses. और देखिए, जब आप उन लोगों से बात करते हैं तो वो कहेंगे, नहीं, मुझे कोई बुरी लत नहीं है, मैं किसी अंधकार में नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। और इस प्रकार की वो बातें आपको कहेंगे, क्योंकि उनकी आंखें जो इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी हैं। Then very simple test, you can ask him, brother, do you have sorrow in your life? Do you have a lot of sickness and fightings in your life? Do you have a lot of anger? Are you frustrated in your life? Okay, then maybe you are having some darkness in your life. This is the symptoms of people who are in darkness. और देखिए, आप बहुत ही सिंपल सा एक साधारण सा सवाल पूछ सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं, भाई क्या आप मन में दुखी हैं? भाई क्या आप मन के अंदर परेशान हैं? क्या आपके जीवन में क्रोध है? क्या आपके जीवन के अंदर बीमारियां हैं? आप बता सकते हैं कि यही वो अंधकार के लक्षण हैं जिनके अंदर आप फंसे हुए हैं। Not just addiction, but there are some other darknesses. Depression is a darkness. Anxiety is a darkness. Suicidal thoughts. All these are different kinds of darknesses that are holding humanity today. और वही एक अंधकार नहीं है, नशा ही नहीं है, बल्कि और भी निराशा एक अंधकार है, चिंताएं एक अंधकार है, और आत्महत्या करने वाले विचारधारा एक अंधकार है जिनके अंदर ये लोग फंसे हुए हैं। Nobody knows exactly what depression is. Nobody knows how come people are getting anxious like that. All these things, they all come under the covering, the meaning of darkness, that which cannot be explained or understood. और आज जो है किसी को नहीं पता है कि ये निराशा कैसे होती है, ये चिंताएं कैसे आती हैं, और ये जो सारी जो बातें हैं ये कैसे, ये सब कुछ जो है वो लोग अंधकार के अंदर है। इस बात को हमने समझना है कि अंधकार के द्वारा ये बातें उनके जीवन में आई हैं।
So we don't want to spend a lot of time to try to find out what is all inside the darkness. What do you mean by food addiction? What do you mean by alcohol addiction? What do you mean by pornography? Instead of trying to understand all the different darknesses, let us just understand all this is darkness. The only solution is to come into the light. If you understand so much, that is enough. और देखिए हमें इन बातों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि अल्कोहल, शराब की लत क्या है, पोर्नोग्राफी, ये अश्लीलता क्या है। इन सब बातों को विस्तार से बातों को समझने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही बात को अगर हम समझ जाए, एक ही सिद्धांत को जो बाइबल के अनुसार है, वो ये है कि उन सबको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आना है। If the Lord leads you to take a counseling degree, yes, it is always helpful when you know more about these things. But even though you don't have the degree, no problem. If in your mind you understand, yes, this brother is in darkness, I have to somehow bring him into the light. That is a good first step to start with. और देखिए अगर आपको प्रभु मौका देता है काउंसलिंग डिग्री करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं और उनके प्रति आपके मन में एक तरस आता है कि इस व्यक्ति को जो अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आना है, ये काफी है आपको उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए। And please realize that our goal is not to just make them believers. Our goal is to make them disciples of Jesus. और एक बात को हमने समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो मेन लक्ष्य है, उनको एक विश्वासी बनाना नहीं है, हमारा जो मेन लक्ष्य है उनको एक चेले के रूप में परिवर्तित करना है। Because a disciple is somebody who will follow after Jesus. And for those who are coming from addiction background, they have to continuously follow, because otherwise what will happen? The darkness will come and try to overtake them. और देखिए हर एक उस व्यक्ति को जो एक नशे की लतों से आता है, वो अंधकार से ज्योति की ओर आता है, और उसको अपने जीवन के अंदर एक अनुशासित रूप में प्रभु यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है। अगर वो अपने जीवन के अंदर निरंतर प्रभु के पीछे चलना छोड़ते हैं तो उनके जीवन में अंधकार आ सकता है। We are covering a lot of topics today. And all of you have to really pay attention, because all this is a lot of information. I have given you the notes. After this seminar, you need to really read all of these things and understand so that you can implement this in your ministry. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, और बहुत सारी जो है ज्ञान की बातें हैं, आज समझ की बातें हैं, हमने आपको दी है, और आपको इस सेमिनार के बाद भी वो जो नोट्स हमने दिए हैं उनको पढ़ना है, उनके ऊपर स्टडी करना है और इस सेवकाई के अंदर सहभागी होना है। Now I want to talk about the final destination for every disciple. और अब जो है मैं इस विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं, हर एक चेले का जो मंजिल क्या है, अंतिम मंजिल क्या है, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। How do we know who is a true disciple? किस प्रकार से हमें पता लगता है कि कौन एक सच्चा चेला है? The Bible is very clear. The destination for all of us, the destination for all the disciples is Mark chapter 12 verse 30 and 31. This is the destination for all of us and destination for all disciples. और देखिए हर एक चेले के लिए जो उनकी मंजिल क्या है, वो बड़ी स्पष्ट रूप से मरकुस उसका 12 का 30 और 31 में बताया गया है कि एक चेले का जो मंजिल है वो क्या है। Every disciple, our personal goal in life is to come to a point in our life when we can love our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength, and we can love our neighbors as we love ourselves. और देखिए हर एक चेले का जो अंतिम जो लक्ष्य है वो यही है कि हम क्या करें, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी समझ से प्रेम रखें, और दूसरी है कि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। Brothers and sisters, this is the final destination for every disciple of Jesus Christ. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही एक अंतिम लक्ष्य है हर एक उस प्रभु यीशु मसीह के चेले का।
to love the Lord our God with all our heart. That means in our heart there is no other room for anything else. To love our God with all our soul, with all our mind. That means in our mind there is no more room for anything else. That is the ultimate destination for every disciple of Jesus Christ. और यीशु मसीह के चेले का, हर एक चेले का जो अंतिम लक्ष्य वो है कि हर एक व्यक्ति अपने पूरे मन से, हमारे मन में किसी और बात के लिए कोई जगह नहीं है, अपने पूरे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, हमारी मनों के अंदर कोई और बात नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही है जिससे हम प्यार करते हैं। यही एक चेले का अंतिम लक्ष्य है। All of us are walking in our path of discipleship. और हम सब लोग जो है अपने चेलेपन के मार्ग के अंदर चल रहे हैं। Many of you may already be walking way ahead of us. Some of us are following from the back, but all of us are walking in our path of discipleship. और हम सब लोग जो है चेलेपन के इस मार्ग के अंदर, इस यात्रा के अंदर है। हो सकता है आप में से कई लोग हमारे आगे हैं, हो सकता है कई लोग पीछे हो, लेकिन हम सब लोग इस चेलेपन की प्रक्रिया के अंदर, इस मार्ग के ऊपर एक यात्रा में हैं। The true disciple, his whole focus, his whole goal, his whole aim in life is to love God more and more and more. And as a result, he will have a love for all humanity more and more and more. That is the mark of a true disciple. और एक सच्चे चेले के जो कदम, जो लक्ष्य कदम है, एक सच्चे चेले के अंदर जो दिखाई देता है वो ये है कि एक चेले का जो केंद्र बिंदु है वो परमेश्वर है। वो अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी जान से परमेश्वर को प्यार करता है। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, उसका जो परिणाम होता है कि वो लोगों से भी पूरे दिल से प्यार करने लग जाता है। People who are struggling with pornography, for example, that is one of the most dangerous addictions in Christianity today. और आज जो लोग जो है अश्लीलता के अंदर, उस लत के अंदर घिरे हुए हैं, आज क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर, ये एक बहुत बुरी लत जो है लोगों के जीवनों के अंदर लगी हुई है। All over the world, people are struggling with all kinds of darkness, but even in the church, people are still struggling with some of these secret sins, secret problems, and that is because they are still need to walk in their path of discipleship, and they have to have the love of God fill their heart, fill their soul, fill their mind, and fill their strength. That is the mark of a disciple. और देखिए इस पूरी दुनिया के अंदर लोग अलग अलग प्रकार के अंधकार में है, लेकिन आज जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी है, वो इस अंधकार में है कि वो लोग अश्लीलता के अंदर फंसे हुए हैं, वो इस गुप्त पाप के अंदर फंसे हुए हैं। आज उन लोगों को जरूरत है कि वो प्रभु के प्रति समर्पित हो, वो प्रभु से अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम कर सके, और इस चेलेपन की प्रक्रिया में, इस यात्रा में वो लगातार इस यात्रा को करते रहे। So the Christian who is struggling with pornography, the problem for him is, yes, he loves God, but not with all his heart. He loves the Lord with little of his heart, but little part of his heart, he loves the other things. So his path of discipleship is to come to a point where God's love has completely taken over his life. और देखिए एक व्यक्ति जो अश्लीलताओं को देखता है, उसकी समस्या क्या है, वो ये है कि वो अपने परमेश्वर से प्रेम तो करता है, लेकिन संपूर्ण मन से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि कुछ मन से वो एक ऐसे गुप्त पाप के अंदर फंसा हुआ है। तो उसकी जरूरत क्या है कि वो व्यक्ति संपूर्ण मन से प्रभु से प्यार करे और अपने चेलेपन की प्रक्रिया में अपने जीवन को दोबारा शुरू करे। So the question is it possible for us to have that kind of life? और आज हमारे लिए प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है कि इस प्रकार का जीवन हम जी सकें? Is it possible for us to have the kind of life where you are completely in love with God, completely free from darkness? Is it possible?
और क्या ये संभव है कि जहां पर आप संपूर्ण रूप से एक अंधकार से छुटकारा पाए हुए हो, संपूर्ण रीति से आप परमेश्वर से प्यार करते हो, क्या एक ऐसा जीवन संभव है या नहीं? Yes, it is possible, and all of us are day by day we are growing more and more and more, becoming more and more and more in the likeness of Jesus, becoming more and more Christ-like. Yes, so all of us are growing in discipleship. और देखिए, हाँ, ये संभव है। हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां पर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इन सब बातों से छुटकारा पाए हुए हैं। ये कब है? जब हम लगातार प्रभु के साथ संगति में बढ़ते हैं, लगातार प्रभु से प्यार करते हैं, तभी हम एक ऐसा जीवन को जी सकते हैं। So now I want to talk to you about the steps of transformation. What are the different areas in our life? और अब जो है, मैं एक और विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जो परिवर्तित जीवन के या एक बदलाव के जो जीवन की वो कदम क्या है, किस बात से द्वारा एक परिवर्तन आता है, उन बातों के ऊपर हम बात करेंगे। If you look at this verse, Mark chapter 12, 30 and 31 very carefully, you will see that there are 5 areas are mentioned in that verse. और अगर आप इस मरकुस 12 का 30 और 31 पद को बड़े ध्यान से देखते हैं, इसके अंदर 5 अलग अलग क्षेत्र दिखाई देते हैं जो इस आयत के अंदर हम देख सकते हैं। All these 5 areas we have to focus on. और हमें इन सारे 5 क्षेत्रों के ऊपर हमें केंद्रित होना है, ध्यान देना है। That is why Jesus told very clearly, he did not just say, love the Lord your God with all of yourself. No, he broke it down and explained clearly, all your heart, all your soul, all your mind, all your strength, and your neighbor. So Jesus broke it down into 5 areas. So it is important for us also to understand those 5 areas. और देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इसको ऐसे नहीं कहा है कि आप स्वयं अब प्रभु से प्रेम करें, लेकिन प्रभु ने, यीशु मसीह ने साफ साफ रूप से 5 अलग अलग भागों में इस बात को बांटा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, प्राण, बुद्धि और सामर्थ्य से और अपने पड़ोसी से प्यार कर। So in the next few minutes we want to look at that. It probably will be a lot of information for you, but just for you to have an understanding that when we are talking about discipleship, we have to look at 5 different areas of a person's life. और आज कुछ अगले क्षण तक जो है हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे और इन 5 ऐसी बातों को देखना है कि जो व्यक्ति इन बातों से बाहर आता है, प्रभु के पीछे चलना चाहता है, 5 क्षेत्र में उनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। May I request some of you have to mute your mics, please do that. और मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने माइक को आप म्यूट करें। आप लोगों ने जो पीछे बोल रहे हैं वो सब कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस उसकी वजह से हो रहा है, आप उसको म्यूट करें प्लीज। So now we are going to look at the 5 areas. I want all of you to just have an idea of these 5 areas of a human being. और आप जो है इस 5 ऐसे क्षेत्रों के बारे में जो एक इंसान के अंदर होता है, इनके बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा बड़े ध्यान से इन बातों को समझें और देखें। Just have an overall idea. Don't get worried about all the details. Just have an overall idea for us to understand that there are 5 areas in our life that we need transformation. और देखिए, बहुत सारी विस्तार से समझने की बातों को जरूरत नहीं है, लेकिन हम बड़े ही साफ साफ ऊपर से इन 5 क्षेत्रों को देखेंगे जिनकी वजह से एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। The first thing Jesus said is love the Lord your God with all your heart. The first area is the heart. This is the spiritual center of a person. और देखिए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्यार कर, जो हृदय है ये एक व्यक्ति की आत्मिक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है। The heart is the center of a person. एक जो हृदय है वो एक व्यक्ति का केंद्र माना जाता है। That is where all the decisions, that is where the willpower is. और वहीं से ही एक व्यक्ति निर्णय करता है, वहीं से ही एक व्यक्ति इच्छा को उत्पन्न करता है। So the first step
before somebody has to come into a life of transformation is that something has to happen in the heart level. और एक व्यक्ति के ऊपर पहला जो कदम है, जो एक व्यक्ति संपूर्ण परिवर्तन के अंदर आना चाहता है, उसके हृदय में कुछ होने की आवश्यकता है. That is why we say being born again, being born in the Spirit, having the Spirit of God come into you. That is the first step before somebody can be a disciple. और यही इसी प्रकार से हम कहते हैं कि एक नया जन्म पाए होना या प्रभु के पीछे चलना क्या है, सबसे पहले एक व्यक्ति का हृदय महत्वपूर्ण होता है. So the spiritual transformation is the first step for complete transformation. और जो आत्मिक परिवर्तन है वो एक पहला कदम है एक संपूर्ण परिवर्तन के लिए. But many times we don't realize that there are other areas in our life. Just the spiritual part is not enough. और कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि सिर्फ आत्मिक भाग ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे जीवन के अंदर और भी बातें हैं जिनके ऊपर हमने देखना है. All of us have a personality. हम हर एक के पास एक व्यक्तित्व है. That personality needs transformation. और उस व्यक्तित्व को परिवर्तित होने की आवश्यकता होती है. When a person is born again and the Holy Spirit comes inside you, now with the help of the Holy Spirit, you can become sanctified. You can have a new personality in Christ. और जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, उसके जीवन को बदलती है, उसके व्यक्तिगत जीवन को बदलती है, तभी एक नया व्यक्ति प्रभु के अंदर हम देख सकते हैं. So we have to work with the help of the Holy Spirit to bring about a new personality in our lives. तो हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा की सहायता से हमें एक नए व्यक्तित्व को अपने अंदर उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है. So when the person who's coming from addiction problems, maybe he was a rowdy, maybe he had some addiction problems before. और देखिए, जब एक व्यक्ति बुरी लतों की ओर से प्रभु में आता, हो सकता है वो व्यक्ति पहले एक बहुत ही बड़ा गुंडा होगा, एक बहुत ही जो है घिनौने काम करने वाला एक व्यक्ति होगा. So I want all of you to please understand what I am saying now. मैं चाहता हूं इस बात को आप बड़े ध्यानपूर्वक समझे जो मैं बोल रहा हूं. So before he came to Christ, he had the personality of a rowdy, for example. और देखिए, आप एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में इस बात को देखें कि इससे पहले प्रभु में कोई व्यक्ति आया है, कोई बुरी लत से, वो पहले अपने जीवन में एक बहुत बड़ा गुंडा हो सकता है. Now he's come to Christ and he's filled with the Spirit of God, and now he's become a born again believer, for example. और उदाहरण के रूप में अब वो प्रभु में आया है और अब उसका जीवन बदला है और अब वो एक नया जन्म पाया हुआ एक विश्वासी बन जाता है. So now the transformation has already started in his heart. और अब जो है उसके अंदर ये परिवर्तन है वो जो शुरू हो चुका है. Now if we need to see complete transformation, then some personality change has to be there. He cannot walk around as a spirit-filled rowdy now. और अब जो है हम इस बात को देखना पड़ता है कि अगर वो व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है तो अब जो है वो आत्मा से भरा हुआ एक गुंडा नहीं है. Because sometimes we see the people are filled with the Spirit of God, but their personality is still the same old personality. Why? Because they have not paid attention. Because we have to have a new personality. We have to see a new change in our character. और देखिए, कई बार आप लोगों के अंदर देखते हैं कि लोग नया जन्म पाए हैं लेकिन फिर भी वैसे ही जीते हैं. हम यहाँ पर क्या मुद्दा है कि हमें एक नया व्यक्तित्व, एक नया जीवन अगर हम उसमें देख नहीं रहे हैं तो वो एक छुटकारा नहीं है. The angry man who came before coming to the Lord, he was an angry man. Now he cannot be an angry believer. That anger has to change. That pride has to change. That personality change has to happen, because that is the next step. Transformation has to happen in your personality.
और देखिए, अगर एक व्यक्ति पहले प्रभु में आने से पहले वो बहुत गुस्से वाला था, ऐसी बातों को करने वाला था, जब वो प्रभु में आता है, वो उन बातों के अंदर एक परिवर्तन होना है। अब वो गुस्से वाला नहीं है, घमंडी नहीं है, इन सब बातों से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है। वो परिवर्तन को हम उसके अंदर देख रहा है। The third area is in the mind, intellectual transformation. और जो तीसरा जो क्षेत्र है वो है मन या बौद्धिक बात के अंदर एक परिवर्तन। Because the Bible tells us very clearly that we have a battle in our mind. क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारे मन के अंदर एक मन युद्ध चलता रहता है। Because many times people, even after they come out of addiction, they're part of the church, they're believers, but still they have a battle in their mind. लेकिन मेरे प्रियो देखिए, बहुत बार जो है लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन अब वो विश्वासी हैं, लेकिन कई बार उनके जीवन के अंदर अभी भी एक मन के अंदर एक मन युद्ध उनके चलता रहता है। Because thoughts and memories and all these things are there in the mind. क्योंकि उनके मन में वही विचारधाराएं, वही सारी बातें, यादगारी की बातें अब तक उनके दिमाग के अंदर भरी हुई है। So that is why the Bible says that we have to be transformed by the renewing of our mind. Our mind has to become renewed and transformation has to happen in our mind also. और इसी प्रकार से बाइबल हमें कहती है कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसीलिए जो है हमारा मन जो है बदलना है, उसके अंदर एक परिवर्तन होने आवश्यकता है। That's why Jesus said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. He wanted us to be renewed in our mind. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तू परमेश्वर से अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। हमें अपने मन में, हमें अपने दिमाग के अंदर भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। There are different steps for transformation in the mind because our thoughts are always there with us. There are different steps, there are different spiritual disciplines that we must do for complete transformation in the mind. और देखिए, एक मन के अंदर संपूर्ण उस छुटकारे को, संपूर्ण परिवर्तन को करने के लिए अलग अलग आत्मिक कदम है जिनको हमें करने की आवश्यकताएं होती है। People who are struggling with pornography, their battle is in the mind. No, it is not that they don't want to follow Christ. It is not that they don't have the Spirit of God in them. They have the Spirit of God in them. But when the thought comes into their mind, when the memory comes into their mind, because their mind is not completely transformed, then they fall back. और देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति जो अश्लीलताओं को देखता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो प्रभु से प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं है। वो प्रभु से प्यार करता है, उसके अंदर प्रभु का आत्मा है, लेकिन उसके मन के अंदर एक मन युद्ध हो रहा है, क्योंकि जब उन बातों को याद करता है, जब वो बातें उसके मन के अंदर आती है, तब वो एक युद्ध का सामना करता है। So the renewing of the mind, all that can happen only through spiritual disciplines. That is why we are talking about discipleship and spiritual disciplines. It is a journey, step by step, little by little, we become more and more by implementing all these spiritual disciplines in our life. और देखिए क्या होता है, ये सब कुछ तभी हो जाता है जब एक व्यक्ति आत्मिक अनुशासन को अपने जीवन में लेता है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि इस चेलेपन के अंदर, इस सारी बातों के अंदर ये कदम कदम करके धीरे धीरे ये हमारे जीवन के अंदर होता है। For renewing our mind, for transformation in our mind, we have to be involved in different spiritual disciplines. और एक हमारे मन को परिवर्तन होने के लिए, नया होने के लिए हमें क्या करना है, अलग अलग प्रकार के आत्मिक अनुशासन से होकर गुजरने की आवश्यकता होती है। One very simple spiritual discipline is memorizing the word of God, because what you do when you memorize scripture, you are putting God's word into your mind and you are trying to fill your mind with God's word. That is one spiritual discipline that you can do.
और एक जो बड़ा आत्मिक अनुशासन जो बहुत अच्छा है वो ये है प्रभु के वचनों को, आयतों को याद करना, क्योंकि जब आप उनको याद करते हैं तो आप अपने मन को आत्मिक अनुशासन के अंदर लेकर आते हैं। There are many different spiritual disciplines that we as disciples we should be having as part of our life. और देखिए बहुत सारे आत्मिक अनुशासन है चेला होते हुए जो हमारे जीवन का भाग होने की आवश्यकता है। Fasting is a very good spiritual discipline that will help us in this transformation. Fasting. और जो उपवास है, फास्टिंग है, वो एक बहुत अच्छा आत्मिक अनुशासन है जो हमारे आत्मिक जीवन में हमारी बहुत अच्छी इस चेलेपन के अनुशासन में हमारी सहायता करता है। So the next area that we want to talk about is transformation in the strength, in your physical, in your abilities, in your actions, in your talents, in your life, all that the physical transformation in your strength. और जो चौथा है जो क्षेत्र है जो हम देख रहे हैं वो ये है हमारी जो क्षमता है, हमारी जो ताकत है, हमारा जो शरीर है, उसके द्वारा जो है हमारी जो योग्यताएं हैं उनके अंदर एक परिवर्तन जब होता है। That means all your talents, all your actions, all your abilities, if you're focused towards discipleship, that means transformation is happening in your life. और इसका अर्थ ये होता है कि जब आप अपनी सारी क्षमताओं को, योग्यताओं को, सब बातों के ऊपर एक परिवर्तन आता है, इसका अर्थ यही माना जाता है कि आप एक आत्मिक परिवर्तन आपके अंदर हो रहा है। We are running out of time, so let us go to the next one. The final one is transformation in our relationships. और जो है हमारे पास समय कम है, आइए हम पांचवें क्षेत्र के अंदर जाए, वो है हमारे सामाजिक जीवन के अंदर एक परिवर्तन होना। Who is a neighbor? हमारा जो पड़ोसी वो कौन है? It is not the person living next to your house. A neighbor is anybody within your area of influence, your family, your church people, the people that you're working with. All these are your neighbors. And so if you're a true disciple, then you will see transformation in your relationships. और देखिए ये आपका पड़ोसी कौन है? ये आपका पड़ोसी वो नहीं है जो आपके घर के पास आ रहा है, लेकिन हर एक वो क्षेत्र में हर एक वो व्यक्ति जो आपके जीवन से प्रभावित है, हो सकता है वो आपके परिवार में हो, कलीसिया के अंदर हो सकता है वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, जहां पर भी हो, जब आप उनके साथ में उनके रिश्ते में उनके रिश्ते में एक परिवर्तन आता है, वो है हमारा सामाजिक परिवर्तन। So it is important for us that if we want to make those in recovery to be true disciples, we need to see transformation in all these 5 areas. और अगर देखिए हमें इस सारे छुटकारे के अंदर अगर हम उस आत्मिक बातों को देखते हैं तो इन 5 क्षेत्र के अंदर हमें एक परिवर्तन को होना बहुत ही जरूरी है। So as pastors, as ministers of the gospel, we know a lot about spiritual, we know a lot about filled with the Spirit of God, we know about bringing people to Christ, that first one we all know, but the other 4 areas also you must focus if you want to have true transformation and true disciples. देखिए मेरे प्रियो, हम सबको पता है पहले क्षेत्र के बारे में, आत्मिक बातों के बारे में, और हमें पता है कैसे एक व्यक्ति को विश्वास में लेकर आना है, प्रभु में बढ़ाना है, सब कुछ पहला क्षेत्र हमें पता है। लेकिन ये 4 और क्षेत्र है जिनके ऊपर हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, जिसके द्वारा एक आत्मिक परिवर्तन आता है। If a person is filled with the Spirit of God and he is doing very well, but he has a bad relationship, that one bad relationship can cause him to fall back into addiction. That is why it is very important for us to focus on all 5 areas. और देखिए अगर एक व्यक्ति आत्मिक रूप से वो बड़ा है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर उसके सोशल लाइफ में या उसके संबंधों के अंदर कोई समस्या है, तो वो व्यक्ति दोबारा से वो इस आदत के अंदर फंस सकता है, गिर सकता है।
So many times we see that people in the spiritual area, they are getting fed. They go to church regularly, they preach, they do all these things. But because they have not focused on the other areas, many times they struggle. और इस बात को हम देखते हैं कि विश्वास में लोग बढ़ते हैं, वो इस पहले क्षेत्र में बहुत ध्यान देते हैं, आत्मिक बातों में चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो दूसरे चार है वो जब उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते, वो अपने जीवन में संघर्ष का सामना करते हैं. So when we talk about addiction recovery, the first area that we talk about is the start with the spirit. That is where the first step is. And how the transformation starts when the word of God through the Spirit of Christ, that has to enter into a person. Once it enters, then the Spirit of God will begin to start the transformation process. और देखिए इस सारे परिवर्तन प्रक्रिया के अंदर जब ये परिवर्तन होता है, ये सबसे पहले हमारी आत्मा में या हमारे दिल के अंदर शुरू होता है. जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन आता है तो आत्मा वहां पर कार्य करना शुरू होती है और वहीं से ही ये सारा परिवर्तन शुरू हो जाता है. For a person to be truly transformed, the transformation has to start from the heart. और एक व्यक्ति के लिए एक सचमुच में परिवर्तन होना, ये जो परिवर्तन है ये उसके हृदय से शुरू होने की आवश्यकता है. If you take an addict and put him in jail, maybe he won't drink alcohol, maybe he won't take drugs, but he is not transformed because he is only transformed as far as his outside is concerned. But the transformation has to start in the heart. और देखिए अगर एक व्यक्ति एडिक्शन में है, नशे की लतों के अंदर है, आप उसको लेकर जेल में डाल दो, शायद वो वहां दारू नहीं पी रहा है, शायद वो वहां पर कोई नशा नहीं ले रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति संपूर्ण रीति से बदल गया है, क्योंकि जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जो परिवर्तन है, वो हृदय से शुरू होता है. So suppose you are standing in front of a person who is struggling with alcohol and drugs. You cannot force him to do anything by holding him. You cannot force him physically. Then the only way that you can change him is for you to touch his heart. और देखिए एक व्यक्ति जो एक नशे की लत में है, आप उसको जो है अपनी सामर्थ्य के साथ उसको रोक नहीं सकते हैं. इसके लिए एक ही बात है कि जब तक आप उसके हृदय को स्पर्श नहीं करते हैं, उसके हृदय को छू नहीं सकते हैं, तब तक वो एक परिवर्तन को नहीं देख सकता है. So how can you touch a person's heart? कि किस प्रकार से आप एक व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं. If you are standing in front of a person and you are wanting to touch his heart, how is it possible? और आप एक व्यक्ति के सामने खड़े और आप उसके हृदय को छूना चाहते हैं, तो कैसे ये हो सकता है? All of us, I want you to understand, our words, our conversation, our speech, that is the vehicle for the Spirit of God. So when you speak very carefully, when you depend on the Spirit of God for your speech, just the way you talk, the Spirit of God will go through your words, through your conversation into the heart of the person. और देखिए हमारे जो शब्द है, हमारी जो वार्तालाप है, वो एक यातायात के रूप में कार्य करते हैं परमेश्वर की आत्मा को उस व्यक्ति के हृदय के अंदर कार्य करने के लिए. इसीलिए हमें अपनी बातचीत के ऊपर, अपने हर एक शब्द के ऊपर बहुत ध्यान देना है, ताकि जो है परमेश्वर का आत्मा आपके शब्दों से होकर उस व्यक्ति के हृदय को छू जाए. Brothers and sisters, all of us, the way we speak to somebody, the words that we speak, the spirit with which we speak, when you talk to somebody, you have the capacity to touch them in their heart. और देखिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आप उनसे बात करते, वार्तालाप करते, अपने शब्दों को बोलते हैं, मुझे आपसे कहने दे, आपके अंदर प्रभु ये क्षमता देता है कि आप उनके हृदय को छू जाएं. Maybe you don't know much about addiction, maybe you don't know all the different theories about addiction, but if you have a real burden for the person standing in front of you, when you speak to them, your love and your compassion will go through your words, will go through your conversation, and will touch that person in his heart.
और हो सकता है मेरे प्रियो आपको बहुत कुछ पता नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है, एडिक्शन क्या है, बुरी लतें क्या है, लेकिन जब आप एक व्यक्ति के प्रति बोझ रखते हैं, तरस से भरा हुआ हृदय रखते हैं, प्रभु के वचन को इस्तेमाल जब आप उससे करते हैं, तो मेरे प्रियो आपके शब्दों से पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा जो है होकर उस व्यक्ति के हृदय को छू जाता है। You can only do addiction ministry if you have a true compassion for those who are struggling with addiction. You cannot do addiction ministry out of duty. You cannot do addiction ministry in any other way. Only if you have real compassion and real burden for the people, only then you will be successful in addiction recovery ministry. और देखिए इस एडिक्शन रिकवरी मिनिस्ट्री के अंदर, नशे की लतों से आजादी की सेवा के अंदर आप तभी प्रभावशाली हो सकते हैं जब आप के अंदर एक बोझ है, आपका मन तरस से भरा हुआ है, आप एक बोझ रखते हैं ऐसी लोगों के प्रति, प्रेम से भरे हैं, तभी उनके जीवन के अंदर आप एक परिवर्तन को देख सकते हैं और इस सेवा को आप कर सकते हैं। Any ministry for that matter, if you have true love and true compassion, then that is the vehicle through which the Spirit of God can work into transformation in people's lives. और देखिए कोई भी सेवा हो, जब तक कि आपके पास वो सच्चा तरस नहीं है, बोझ नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सच्चा बोझ है, तरस है, वही प्रभु की आत्मा के लिए एक यातायात का साधन होता है, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों की आत्माओं को छूता है। But if you go to somebody with an attitude of, oh, this fellow, useless fellow, is drinking alcohol, oh, come here, brother, let me pray for you. No, you will not be successful because you don't have compassion. You need to have compassion if you want to have any effect in this ministry. और देखिए मेरे प्रियो, अगर आप इस धारणा के साथ जाते हैं, और ये बंदा तो ये बुरे काम करता है, नशे करता है, आजा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, हो सकता है तेरा जीवन बदल, इस धारणा के साथ आप कभी भी इस सेवा को नहीं कर सकते हैं जब तक आपके हृदय उस तरस और बोझ से भरे हुए ना हो। Love and compassion for the people, burden for the lost, that is the vehicle through which the Spirit of God can work. और देखिए बोझ और तरस और लोगों के प्रति प्रेम से भरे हुए व्यक्ति के ऊपर ही क्या है, प्रभु का आत्मा एक यातायात के रूप में कार्य करता है, जिसके द्वारा प्रभु का आत्मा लोगों के हृदय को छूकर बदल सकता है। Jesus told all of us, go into the world and make disciples. We are called to make disciples, not believers, not Christians, not Baptists, not Pentecostals, not any other denomination. We are called to make disciples. And brothers and sisters, we have been empowered by the Spirit of God through our conversation, through our burden, through our compassion. We can go and set all the addicts free. और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आदेश दिया है, जाओ और जाकर लोगों को चेला बनाओ। ये प्रभु ने हमें आदेश दिया है। प्रभु ने हमें ये नहीं कहा जाके किसी को पेंटाकोस्ट बनाओ, किसी को बैप्टिस्ट बनाओ या कुछ और करो। प्रभु ने हमें कहा है कि हम चेला बनाए, और जब हम इस बोझ के साथ में, इस तरस से भरे हुए हृदय के साथ में इस सेवा को करते हैं, तभी हम एक प्रभावशाली सेवा को कर सकते हैं। Today in India there are millions and millions of people who are struggling with addiction. Millions of people are struggling with addiction. और आज भारत के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जो बुरी लतों के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, जिनको एक छुटकारे की जरूरत है। Many of the churches, many of the pastors and evangelists, we are all looking for ways to do ministry. And I want to tell you, addiction ministry is one of the greatest opportunities that you have, because these are the people who are ready for the gospel and the freedom in Jesus Christ. मुझे आपसे कहने दे, आप अलग अलग सेवकाइयां करते, अच्छी बात है, लेकिन ये एक एडिशन जो बुरी लतों के अंदर लोगों के बीच में जो काम करने की सेवा है, ये एक बहुत ही प्रभावशाली सेवा है। वो लोग जो बुरी लतों के अंदर है, वो खुले मन के हैं, उनको वो सुसमाचार की आवश्यकता है और वो तैयार है अपने जीवन को प्रभु को देने के लिए। There are different ministries that you can do from your own church, just from whatever we learn today. There you have the Bible, you have the Word of God. You can definitely do addiction recovery ministry. There are so many beautiful ministries that you can do.
और देखिए आज जिस कलीसिया के अंदर आप है उसके थ्रू आप बहुत अच्छी सेवकाइयों को कर सकते हैं। इस जो बुरी लतों के अंदर कार्य करने की सेवा है, इसको भी आप बहुत ही सुंदर रूप से कर सकते हैं। आपके पास प्रभु का वचन है, सारी बातें प्रभु ने आपको दी है, इस सेवा को आप बहुत ही प्रभावशाली रूप से कर सकते हैं। Every church can become a counseling center. Every pastor can become a counselor. We are equipped. We have the word of God. All we need to do is step out and we can become discipleship counseling centers and set thousands of people free from addiction. और देखिए हर एक कलीसिया एक काउंसलिंग का सलाहकार का केंद्र हो सकता है। हर एक पासवान एक सलाहकार हो सकता है। सिर्फ हमें एक ही चीज करना है कि प्रभु के उस वचन को समझकर, प्रभु के उस बोझ को लेकर जब हम इस सेवा को करते हैं, हम लोगों के जीवन को बदलता हुआ देख सकते हैं। I want to just give you an example. We have a ministry called Life Camp Ministry, where we bring people from addiction background and we conduct a 10-day camp ministry. And I tell you, because of this ministry, the churches have begun to grow in multiple ways, because these are people who are desperate for transformation. They will not come and argue about anything. They will not argue about conversion or this and that. They want freedom. They want transformation. And when Jesus sets them free, they become disciples of Jesus. It's a wonderful ministry opportunity that is there. और देखिए हम एक कैंप चलाते हैं जिसको बोलते हैं लाइफ कैंप। 10 दिन का ये कैंप हम इस प्रकार से चलाते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो नशों की लतों में थे, बुरी आदतों में थे। उन लोगों को जो है इस कैंप के अंदर हम सिखाते हैं, सब कुछ प्रभु के वचन से करते हैं। देखिए लोगों को किसी और चीज के ऊपर ध्यान नहीं है, ये कोई आपके ऊपर किसी रीति से कोई मुद्दा नहीं छेड़ते हैं। इनको एक ही बात चाहिए, ये आजादी चाहते हैं इन सारी बुरी आदतों से। और मुझे आपसे कहने जिसके द्वारा बहुत सारी कलीसियाओं बड़ी है, बहुत सारी कलीसियाओं ने बढ़ोतरी को देखा है। Can you imagine in your places, wherever you are, outside your house, so many families are under the bondage of addiction? What a harvest is there. If you pray and allow the Lord to use you, you can see mighty revival among them. Nobody can question you, because if a rowdy changes and comes to Christ, who can question? He will say, I was a rowdy. I was lying there as a drug addict, as an alcoholic. Jesus set me free. Nobody can question. You pray about it and see what God can do through your ministry. और देखिए आपके घरों के बाहर, आपके पड़ोस में जिन क्षेत्रों में आप हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इन बातों के द्वारा संघर्ष कर रहे हैं। आप उनके पास जब जाते हैं, एक बहुत बड़े चेंज को, एक रिवाइवल को आप देख सकते हैं, बेदारी को देख सकते हैं उनके जीवन के द्वारा। अगर आप इस सेवा को करते हैं, कोई भी आपके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगों का जीवन बदलता है तो वो कहते हैं मैं पहले ऐसा था, मैं गलत काम करने वाला था, बुरी आदतों में था, मेरा जीवन बदला है। मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है सेवकाई करने का। We need a change in our attitude, because overall the attitude in Christianity is, let us do a big revival, let us bring 10,000 people, let us preach the gospel, and let us have a number that 10,000 people came to Christ. That is one kind of ministry. But discipleship ministry is you spend time with a few people and disciple them, the pattern of Jesus Christ. You spend time with a few people, disciple them, help them to grow. Then your ministry will begin to grow in a multiple way. और देखिए आज हमें इस सोच को, इस धारणा को बदलने की जरूरत है, जहां पर हम सोचते हैं आओ हम इतने लोगों को लेकर आए, एक बेदारी की सभा करें, ये करें। मेरे प्रियो, वो सेवा ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक चेलेपन की जो सेवा है, आप कुछ लोगों के साथ रहते हैं, उनके बीच में कार्य करते हैं, उनको प्रभु में बढ़ाते हैं, और एक अद्भुत सेवा को उनके बीच में आप देखते हैं। Revival crusades and all these evangelistic programs are wonderful. They are very good to bring people to Christ. If you take an addict and take him to a revival crusade, he will go there. Yes, he will be set free. He will be set free, but he has to walk in discipleship. Who is going to do that? If you don't do that, he will fall back. Then what is the point? और देखिए ये जो बड़े बड़े क्रूसेड है, बेदारी की सभाएं हैं, ये अच्छी है, बढ़िया है। अगर आप एक नशे के व्यक्ति को इनके अंदर लेकर जाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है, लेकिन उसके बाद में अगर उसको सही चेलापन नहीं मिलता है, उसको अनुशासित जीवन नहीं मिलता, दोबारा से वो इन नशों में चल जाता है, तब आप क्या करेंगे? तब इन सब का क्या फायदा है?
If you make a decision and say, okay, now between now and the rest of this year, I am going to choose 2 or 3 people, some key, maybe some rowdies in your city. You pray for them. You spend time instead of trying to reach thousands of people. You spend your time to find 1 or 2, 3 people, and if they come to the Lord, can you imagine the powerful testimony that you will have, the powerful ministry that can happen through 1 or 2 or 3 of these testimonies? But you must be willing to spend the time for that. और देखिए, अगर आज आप एक निर्णय लेते हैं कि इस साल में, इस समय में मैं 2-3 लोगों को लूंगा जो ऐसी बुरी आदतों में है, और उनके बीच में मैं कार्य करूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनको मैं सिखाऊंगा, और आप देखेंगे जब उनके जीवन को बदलता हुआ, जब उनके जीवन में एक परिवर्तन को, मेरे प्रियो, ये कितनी एक बेदारी की सेवा होगी, कितनी अद्भुत सेवा होगी जब आप उनके जीवनों में एक बदलाव को देखते हैं। We have come to the end of our time today. और हम अपने समय के बिल्कुल अंतिम क्षण में पहुंच चुके हैं। We are happy that all of you are able to join us for our seminar today. और हम बहुत खुश हैं कि आप इस सेमिनार के अंदर आए हैं। हम धन्यवादित हैं आप लोगों के। We want to help you in your ministry in whatever way possible. और हम जो है आपकी सेवा में आपकी सहायता करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, कैसे भी क्षेत्र में हो। We can provide training, we can just help you in training matters, but we just want to encourage all of you to do the ministry. और हम जो है आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम सब बातों में प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम ये चाहते हैं सेवा में आपको प्रोत्साहन करना कि आप इस सेवा को गंभीरता से लें। If there's anything that we can do to help you, you please let us know. As far as training is concerned, you can please let us know. और अगर आप चाहते हैं कि सेवकाई के अंदर हम आपकी कोई सहायता करें, हमें बताएं, ताकि जो है जिस प्रकार से जो ट्रेनिंग है, ये सब बातें सिखाने की बातें हैं, इनमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। So today I want to thank once again our dear brother Daniel for helping to host this program. और एक बार फिर से मैं अपने जो हमारे प्रिय भाई पास्टर डॉक्टर डैनियल कामराज है, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं इस प्रकार की एक मीटिंग को होस्ट करने के लिए। So thank you very much everybody. Now I hand it over to brother Daniel. और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो, और अब हम पास्टर डैनियल कामराज जी को मौका देते हैं। थैंक यू। Brother, please unmute yourself, brother Daniel.